जय स्वामीनारायण फ्रेंड्स. BAPS Swaminarayan Vidya Mandir Gondal. On the behalf of them, Pandhi sir welcomes you in video lecture number 8 of English medium 12th standard chapter number 10 vector algebra. Today we will learn to add two vectors. How we can add two vectors? We have two laws, parallelogram law and triangle law. Before starting, let's have two vectors, say vector A and vector B. I have taken 4 2 and minus 1 2. Then first plus first, second plus second, 4. As simple as that. Now this is what we call algebra, and now geometry we will see how we can add two vectors. This simple thing we will visualize, and we will see two different laws to find resultant vector of addition of two vectors. Look, 4 2 vector I have taken 4 0 1 2 3 and 4 here, and 2 4 2 vector is here. Now this is free bound vector 4 2, is it? Another vector I have taken is minus 1 2. So minus 1, it's here on x-axis, and 2 here. So minus 1 to this point, join tail at origin. Any vector, head is there, position vector, and tail is at origin. So these two vectors we have, these two vectors. How we can add them? Just we have seen it is 3 4. So graphically, if you complete the parallelogram, 3 4 denotes fourth vertex of the parallelogram. Look, this very same vector I am drawing here, parallel to this and having equal magnitude. Similar free vector concept, vector can move, vector can roam anywhere in vector space. So this vector I have shifted here, another vector we have shifted here. So, and complete the parallelogram, that is parallelogram law. And the new vertex, suppose C, x coordinate is 3 here and y coordinate is 4, 3 4. And as we know, vector addition, first plus first and second plus second, will give us same thing in algebra and in geometry. So this is just verification of parallelogram law. चलो एक अलग तरीके से समझते हैं इस चीज़ को. चलो, ये 4 2 है, इसका डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड क्या हुआ 4 2 का, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 20. सो स्क्वायर रूट ऑफ 20 is 2 root 5. Okay, this side we have minus 1 2. If we find magnitude of this vector b bar, this is a bar, this is b bar, this vector is a bar, the smaller vector is b bar. Now b bar, magnitude of that, minus 1 square and 2 square, रूट 5. दिस इज रूट 5, दिस इज 2 रूट 5. सपोज एक बंदा यहाँ पे रूट 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दो बंदे यहाँ पे रूट 5 मतलब 2 रूट 5 टोटल फोर्स लगा रहे हैं. अगर तीनों ही सेम डायरेक्शन में होते ना भैया, तो 3 रूट 5 का टोटल फोर्स हमको मिलता है इस तरफ. रूट 5 अप्रोक्सीमेटली 2.25 है, 2.25 के आसपास है. तो ये 2.25 हो गया, ये 2.25 का दुगना हो गया, 4.5 के आसपास. और अगर ये बंदा भी यहाँ पे जोर लगाता, फोर्स लगाता, तो क्या होता? तो होता 3 रूट 5 मीन्स 6.25 के आसपास. तो वो हो गया ये 2.25, ये 2.25 2 बार, मतलब 3 बार हो गए. तो ये 6.25 वाला फोर्स इस तरफ मिलता हमको. पूरा तीनों बंदों का फोर्स का सादा सीधा स्केलर एडिशन, रेगुलर एडिशन जो हम लोग करते हैं ना, वो होता. यहाँ पे क्या है, लेकिन फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो फिर कुछ फोर्स तो वेस्ट जाने ही वाला है, एक दूसरे को काटने में जाएगा. तो क्या होता है, चलो देखते हैं. तो एज वी नो बाय पैरेललोग्राम लो, ये वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट किया, ये यहाँ पे शिफ्ट किया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया. ये जो वर्टेक्स है उसका पोजीशन वेक्टर बोले तो टेल को ओरिजिन पे लगाना है. ये है इन दोनों का वेक्टर एडिशन, ए बार प्लस बी बार, एंड दैट वेक्टर इज 3 4. एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज 3 4 5, बिकॉज 9 + 16 25, स्क्वायर रूट ऑफ दैट 5. हमने क्या बोला था अभी, 6.25 होता अगर तीनों मिलकर एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो हमको 6.25 के आसपास मिलता.
लेकिन तीनों का फोर्स तो उतना ही जा रहा है, लेकिन रिजल्ट 6.25 नहीं मिल रहा, 5 ही मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ रिजल्ट वेस्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि शायद ये परपेंडिकुलर है। हाँ, परपेंडिकुलर ही है। तो कुछ कुछ फोर्स एक दूसरे को काउंटर करने में, काटने में चले जा रहे हैं, तो पूरा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कितना रिजल्ट मिलेगा, किस डायरेक्शन में मिलेगा? तो इतना मिलेगा, और इस डायरेक्शन में यहीं तक का रिजल्ट मिलेगा। ये है पैरेललोग्राम लॉ। ज्योमेट्रिकली समझना भी आसान ही है। देखो फिर से बताता हूँ, 2 बंदे यहाँ पे, एक बंदा यहाँ है, तो फिर नेचुरल है कि बीच में ही कहीं जाएगा, और 2 बंदों का जोर लग रहा है इस तरफ, तो थोड़ा तो इस तरफ ही जाएगा ना भाई। तो कॉमन सेंस भी बोल रही है कि नहीं यही होना चाहिए, डायग्राम भी बोल रहा है, वेक्टर अलजेब्रा भी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, तो भाई सही है बात ये। चलो, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ। अब दूसरा क्या है? दूसरा है ट्राइंगल लॉ। भाई ट्राइंगल लॉ बढ़िया रहता है, इजी होता है उससे, पैरेललोग्राम वाले लॉ से, और यूज़ भी ज़्यादा रहता है उसका, क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं उसके। देखते हैं क्या कह रहा है ट्राइंगल लॉ। वहीं 2 वेक्टर है जिसको हमको ऐड करना है। अगेन दोज 2 वेक्टर्स वी आर नाउ डिस्कसिंग ट्राइंगल लॉ। ओके, दोज 2 वेक्टर्स अगेन। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो वेक्टर है ना, इसको उठा के यहाँ पे रखना है। क्या कर रहा हूँ मैं? एक की हेड पे दूसरे की टेल लगा रहा हूँ। इसको भूल जाओ भैया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी, इसको भूल जाओ पूरा। यहीं पेंसिल ही देखो दोनों, एक का हेड हो गया, दूसरे का टेल हो गया। और अब ये ट्राइंगल कंप्लीट करो, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, इसके स्टार्टिंग से इसके एंड तक का ये जो कंप्लीट किया ट्राइंगल, इस तरफ का जो ट्राइंगल कंप्लीट किया, जो तीसरी साइड आई ना, इन दोनों के अलावा जिनका एडिशन करना है, वो नहीं, तीसरी साइड, वो हो गई रिजल्टेंट साइड। वो हो गई रिजल्टेंट साइड। ये नहीं देखना है हमको, सिर्फ ट्राइंगल ही बनाना है। फिर से कैसे ट्राइंगल बनाया? एक वेक्टर यहीं पे है, दोनों की टेल नहीं मिलानी, पैरेललोग्राम लॉ की तरह। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है? टेल नहीं मिलती, इसको उठा के प्री वेक्टर बना के यहाँ ले जाते हैं, तो इसकी टेल और इसकी हेड मिलती है यहाँ पे। और जो ट्राइंगल कंप्लीट करो आप, तो जो तीसरी साइड जो आ गई, वहीं डायरेक्शन है और वहीं मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, इन दोनों के एडिशन का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो फिर से सोचते हैं क्या किया हमने? ओ से ए तरफ गए हैं हम, ओ से ए की ओर गए, फिर वहाँ से क्या किया? ए से बी की तरफ गए, ए से सॉरी सी है यहाँ पे, सी पॉइंट है, ए से सी की ओर गए। तो डायग्राम नहीं देखना है हमको, सिर्फ यही देखना है यहाँ एरो है या नहीं है, ये हेड है ये टेल है, मिला लो दोनों का। तो ओ से सी हो गया, ओ से सी, हाँ वही तो हम बोल रहे हैं ना कि रिजल्टेंट वही आएगा। तो ये हो गया भैया सीधा साधा ट्राइंगल लो, और कुछ नहीं है ट्राइंगल लो में, बहुत ही सिंपल है ट्राइंगल लो। देखो आपकी टेक्स्ट बुक क्या कह रही है, एकदम बढ़िया समझाया है उन लोगों ने भी, वेक्टर एडिशन जो है टेक्स्ट बुक में। देखो ये ट्राइंगल लो क्या बोल रहा है, डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो, ए बी प्लस बी सी, बी को मिला लो तो ए सी हो गया रिजल्टेंट। डायग्राम अब देखते हैं, वही होगा क्योंकि सिंपल है। एक का हेड ले देखना है, एक का टेल, ए बी, ये ए बी वेक्टर समझ लो, एक्स बार वेक्टर हो गया, एक्स वेक्टर, बी सी वेक्टर, तो रिजल्टेंट हो गया एक्स बार प्लस एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। घर से स्कूल से सपोज़ घर तक जा रहे हैं, रास्ते में एक फ्रेंड को छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो किलोमीटर तो बढ़ेंगे, लेकिन रिजल्टेंट तो वही रहेगा ना कि आप घर से स्कूल से घर की ओर गए, ख़त्म। तो रिजल्टेंट ये है, वहाँ से वहाँ तक। ये वेक्टर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, वेक्टर में नहीं बोलना पड़ता कि आपने ये पहले 2√5 फिर √5, आप क्या बोलोगे? यहाँ पे मम्मी बैठी है घर पे, यहाँ पे आप हो स्कूल पे, स्कूल से फ्रेंड के घर पे गए, ये 2√5 डिस्टेंस कवर किया, फिर बाद में √5, 3√5 टोटल कवर किया, 6.25 किलोमीटर के आसपास कवर किया। माँ को क्या बोल रहे हो आप? मम्मी को क्या बोल रहे हो? नहीं, स्कूल से आ रहा हूँ 5 किलोमीटर। रिजल्टेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, वो आपका 5 किलोमीटर ही है। ये जो है ना, ये वाला, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड, ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज़ 3√5 मीन्स 7.25 किलोमीटर के आसपास। रिजल्टेंट तो यही है 5 किलोमीटर। तो वेक्टर एडिशन सिंपल नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, अगर कोई हाई स्कूल वाला या फिर 5वीं कक्षा वाले बच्चे को बोलेंगे 2√5 + √5 3√5 ख़त्म,
लेकिन यहाँ पे 2√5 प्लस 3√5 प्लस √5 मतलब 3√5 मतलब 6.25। 6.25 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 5, क्योंकि एंगल कुछ इस तरह से बने हुए हैं, तो वो सब कुछ देखना पड़ता है यहाँ पे। सिंपल है। ओके, अभी पैरेललोग्राम का जो लॉ हमने बताया वो भी देख लेते हैं रिपीट में। ये देखो टेक्स्ट में भी, ये टेक्स्ट बुक में आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया है। ओ से ए तरफ गया ये ए वेक्टर, ओ से बी की ओर गया बी वेक्टर। क्या किया उन लोगों ने, ए वेक्टर को कॉपी ले गया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मेंटेन करते हुए, एंड कॉपी दिस बी वेक्टर एज वेल by maintaining direction and magnitude, and the new vertex position vector of them will give you a plus b. In this parallelogram law, again telling you we have to match two tails and we have to complete parallelogram, then these diagonal will show us resultant of vector addition of these two. अगर मैं ये वाला डायगनल लूँ तो क्या होगा, हेड माइनस टेल के हिसाब से ए माइनस बी हो जाएगा। क्या बात है, एक ए प्लस बी है और इस तरफ जाओ तो ए माइनस बी है। ये तो बढ़िया वाला रिजल्ट हो गई है। वो हमारी राइडर्स में, पजल्स में कुछ कुछ क्वेश्चन है अच्छे वाले, उसमें बहुत काम आने वाला है। डॉट प्रोडक्ट के बाद में हम वो सब डिस्कस करेंगे। क्या स्टेटमेंट है, पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स, पास पास की जो साइड्स है वो ए वेक्टर बी वेक्टर, then both the diagonals are a plus b and a minus b. Okay, and this result will be very much useful. We will see in later part of this chapter. Okay, तो ये हुई बात। चलो कुछ नए वाले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पे राजकोट है, यहाँ पे कहीं पे राजकोट से आप बगोदरा पहुँचे, बगोदरा से सरखेज जाना है, अहमदाबाद जाना है। सरखेज सर्कल का 50 किलोमीटर आपको दिखा रहा है। आप सोच रहे हैं पहले नल सरोवर होके जाते हैं, चलो तो नल सरोवर आप गए 25 किलोमीटर्स, फिर बाद में 55 किलोमीटर्स, टोटल आपने ट्रैवल भले 80 किलोमीटर्स किया हुआ है। ट्रैवलिंग आपका 80 किलोमीटर्स हो गया, वो सही है, लेकिन आपका जो रिजल्टेंट डिस्टेंस कितना कवर हुआ, वो हुआ 50। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ लो ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक। तो आपने स्टार्ट कहाँ से ली, वाया कहाँ गया वो देखने की कोई बात नहीं है, ख़त्म कहाँ पे की अपनी जर्नी। तो ये है अपना रिजल्टेंट वेक्टर। भले ही आपने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया हो, डिस्टेंस कवर किया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपका 50 किलोमीटर्स ही गिना जाएगा वेक्टर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वो नहीं देखना है, डायरेक्ट देखना है। वेक्टर एडिशन कहलाता है। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, दोनों वेक्टर का ये एडिशन हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, ये ट्रायंगल फ्लो में क्या किया हम लोगों ने, एक का हेड है और दूसरे का टेल है, एक का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, दूसरे का वो इनिशियल पॉइंट है वेक्टर का। और इस तरीके से अगर आप वेक्टर को देखते हैं तो फिर ये जो तीसरा वाला यहाँ से स्टार्ट, पहले का स्टार्टिंग देखना है और लास्ट जो वेक्टर है उसका एंडिंग देखना है, यही देखना है। ज़्यादा अगर है पॉइंट तो भी ये बात सही है, वो देखो वो कैसे मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अगर आप एडमिन ऑफिस से क्लासरूम की ओर जाना है आपको, लेकिन पहले आप देखते हो कि लाइब्रेरी में आपका एक फ्रेंड खड़ा है, पहले आप वहाँ गए, फिर आप दोनों ने देखा कि प्लेग्राउंड के गेट के पास और एक फ्रेंड खड़ा है, तो आप दोनों फ्रेंड वहाँ पे गए और फिर आप तीनों फ्रेंड क्लासरूम तक पहुँचे। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया इतना। समझ लो यहाँ पे 50 मीटर से, यहाँ पे 50 मीटर से, यहाँ पे 50 मीटर से, और ये वाला 100 मीटर है समझ लो। तो आपने 150 जो मीटर्स कवर किया वो आपका हो गया डिस्टेंस, और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट 100। वो 150 नहीं है, वो सादा स्केलर का एडिशन नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन है, इसके लिए ऐसा होता है। एक की हेड, ये यहाँ पे दूसरा स्टार्ट हुआ वेक्टर, उसकी टेल है यहाँ पे, वहाँ ये ख़त्म हुआ उसका हेड, वहाँ तीसरा स्टार्ट हुआ उसकी टेल, तो यहाँ पर जाके ख़त्म हुआ। यहाँ से यहाँ एडमिन ऑफिस से, लाइब्रेरी से, प्लेग्राउंड से क्लासरूम तक आप पहुँचे। और अगर क्लासरूम का टीचर पूछ रहा है कहाँ से है, एडमिन ऑफिस से आया, डायरेक्ट आया एडमिन ऑफिस से आया। तो ये क्या हुआ कि वाया कहाँ से है, ये सब वेक्टर में नहीं देखना है, वेक्टर में स्टार्टिंग देखना है, एंडिंग देखना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको डायग्राम भी नहीं देखना है, कोई अगर पूछता है कि AL
प्लस एल पी प्लस पी सी इज, तो आपको देखना है ये एल एल जोड़ लो तो ए पी हो गया, ए से स्टार्ट हुआ, एल एल जोड़ लिया, वो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो गया ए पी, एल एल जोड़ दिया, ये हो गया पी सी। फिर से देख लो कि यहाँ का जो वेक्टर है ये स्टार्ट एंडिंग, ये स्टार्टिंग, ये एरो वाला पार्ट ए पी पी सी, सो वो हो गया ए सी। बस यही है और कुछ नहीं है। ट्राइंगल लो में हर बार ट्राइंगल नहीं बनता, देखो यहाँ पे मैंने ट्रेपेजियम कुछ बना दिया हुआ है, कुछ अलग भी डायग्राम हो सकता है। हेक्सागोन वाले क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं आगे जाके, जो अच्छे वाले क्वेश्चन है, JEE लेवल के क्वेश्चन अच्छे वाले, लेकिन वो शेप कौन सा भी हो, ये बोला जाता है ट्राइंगल्स लो। यहाँ पे एक ख़त्म होता है वेक्टर, दूसरा स्टार्ट होता है, तो उन दोनों का आप जोड़ सकते हो, ए से पी डायरेक्ट बोल सकते हो। डायरेक्शन भी उसमें आ ही गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया, हम लोगों को कुछ अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। तो ये हो गया ट्राइंगल लो, समझ लो ये ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोल रहा है ए बी प्लस बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ये देख लो, ये बी बी ज्वाइन कर लो, ये हो गया ए सी वैक्टर, ख़त्म। इतनी ही बात है और ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में। और अगर कोई ऐसे पूछे आपको कि ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर, देन व्हाट विल हैपन, सेम ही है भैया। सी बी वेक्टर जो है सी से बी तरफ जाने वाला, उसको अगर उल्टा कर लेते हैं, बी सी कर लेते हैं, तो वो माइनस की साइन बाहर देगा। किसी भी वेक्टर को यहाँ से यहाँ तक का बताते हैं, बी से सी से बी, क्या डिफरेंस क्या रहता है, हेड माइनस टेल, टेल माइनस हेड, तो वो क्या हो गया, सिंपली बी बार माइनस सी बार एंड सी बार माइनस बी बार। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, इट इज़ नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर सिंपली। सो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना भैया, तो ये आपको वही क्वेश्चन ही हो गया, ये वाला ही क्वेश्चन हो गया, कुछ नया नहीं है इसमें। तो देखो टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 में, ये टॉपिक वैसे इतना खास कोई यूज़ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, देखेंगे हम वो वाले टॉपिक्स में, सब में जो टफ वाले क्वेश्चन है उसमें सोचेंगे, अगर कहीं पे अगर ये यूज़ किया जा सकता है तो देखेंगे, चलो आगे जाके। चलो अभी यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिख रही है ना, ए बी बी सी एंड रिजल्टेंट इज ए सी ऑलवेज, दैट वी नो, ट्राइंगल लो। तो देखो पहले इसमें से कौन सा वाला नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, देखते हैं। ए बी बी सी सी ए, देखो ये ए से बी जा रहा है, बी से सी से ए बी बी सी ए, सी से ए तरफ जा रहा है, तो वो हो गया 0, करेक्ट है या नहीं है, देखो ये है हमारे पास। अब इसको हम क्या सोचते हैं, देखो अभी अभी मैंने बताया कि ये ए सी में इस तरफ अगर पहले तो शिफ्ट करता हूँ रेगुलर, तो वो तो माइनस हो गया। अब ये ए सी को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, सी ए अगर लिखना चाहूँ तो वो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो कोई भी क्लोज लूप ले लो, कोई भी क्लोज लूप, ए बी बी सी ए, ये ए सी के बजाय हमने क्या कर दिया, सी ए कर दिया, तो 0 ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग भी ए है एंडिंग भी ए है। अगर आप ऐसे 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 सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, आप क्या पाओगे, देखो ये बी बी जोड़ लो तो ये हो गया ए सी ए, अब सी जोड़ लो तो क्या हो गया ए, तो ए से ए तक का वेक्टर क्या कहलाएगा, सिंपली 0। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, ट्राइंगल हो रेक्टेंगल हो, कोई भी क्लोज डायग्राम हो ना भैया, क्लोज डायग्राम में अगर हम ए बी बी सी डायग्राम नहीं देखना, ए बी बी सी ए, जो स्टार्टिंग है वहीं एंडिंग है, तो फिर कहाँ गए थे, कहीं पे भी नहीं गया था। पहले अगर ए से बी पॉइंट तक गए, एक पहले फ्रेंड के पास, बी से कैंटीन तक गए, कैंटीन से वापस आए ए पॉइंट पे आ गए, कहीं पे भी नहीं गया, मैं तो यहीं बैठा हूँ 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। आपकी तरह थोड़ा सा वो कई बार गुल्टी मार देता है, झूठ बोल देता है थोड़ा थोड़ा वेक्टर भी, ओके। तो स्टार्टिंग और एंडिंग अगर सेम है तो वो 0 हो जाता है। दिस इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट, ओके। सो पहला वाला तो ट्रू हो गया, दूसरा वही है ना, वही है, देखो दूसरा क्वेश्चन वही है, ए बी प्लस बी सी, ये प्लस सी ए ही हो गया अगर आपको ऐसे लिखते हैं, तो ये भी ट्रू है, ओके, तो ये भी सही है। ए बी बी सी माइनस ए सी इज़ 0,
फ़र्क क्या है भैया दोनों में? ए बी बी सी माइनस ए सी दोनों ही सेम तो लिखे हुए इन लोगों ने, कुछ फ़र्क नहीं है, प्रिंट मिस्टेक लगता है कुछ। ए बी बी सी ए सी, ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं इन लोगों ने, तो सही होना है। ओके, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए 0, ये माइनस सी बी है ना, उसको बना देते हैं बी सी, अगर उसको बी सी बनाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ए बी बी सी सी ये 0, तो वो तो पहला वाला हो गया, तो ये ट्रू। मुझे लगता है सी में कुछ जोल है, उसमें कुछ प्लस माइनस का डिफरेंस है, देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। दूसरे मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है उसमें देख लेते हैं, चलो। मिल गया। दूसरे मीडियम की जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो देखो, आप देख सकते हो सी ए लिखा हुआ है, सी में इन लोगों ने ए सी लिखा हुआ है, बिल्कुल बदल जाता है मतलब, क्या यार। ओके, मिस्टेक है एनसीईआरटी में, यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे है सी ए। ओके, सी ए, तो क्या होगा, सी ए को अगर आप इंटरचेंज करते हो, सी ए हो तो प्लस ही होना चाहिए, ए बी बी सी सी ए देन ओनली 0, सो दिस वन इज फॉल्स, ये वाला फॉल्स है, ठीक है। तो चलो, ये हो गया हमारा वेक्टर एडिशन, ठीक है। आज थियरी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, कुछ होमवर्क कुछ ज़्यादा इसमें से निकलेगा नहीं, क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे ऐसे, और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो सकती है, ये खास लिखने वाली चीज़ है, ये लिख लीजिए। और ये भी लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़िया दिया हुआ है दोनों डायग्राम, वो भी देख लीजिएगा, दोनों डायग्राम अच्छे दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, ये दोनों पैरेलल लो, पैरेललोग्राम लो और ट्राइंगल लो, दोनों में ही।